آمین. ہر انسان خدا سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ اس سے غرض ہوتی ہے، بلکہ وہ اس لیے بھی اس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ میرا معبود ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دستور. کیا ہے جی؟ دستور کے لیے جب آپ بائبل پڑھو گے تو وہاں پر لفظ کانسٹیٹیوشن بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قانون. اس کو آپ آسان لفظوں میں اگر کریں گے تو اس کا مطلب رسم و رواج بھی ہوتا ہے. رسم و رواج کسی علاقے جسے آپ آسان لفظوں میں کلچر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ ویسٹ میں جائیں گے تو ویسٹ کا کلچر فرق ہے، اگر آپ ایشیا میں آئیں گے تو ایشیا کا کلچر فرق ہے. یعنی دنیا کے ہر ملک میں آپ جائیں گے، زبانیں فرق ہیں، کلچر فرق ہے، کپڑوں کی ڈریسنگ جو ہے وہ فرق ہے، لوگوں کا لائف سٹائل فرق ہے. تو میں ایک دن ایک پروفیسر کا مجھے کلپ آیا اور میں نے اس کو سنا. پروفیسر، کیا لفظ لگا تھا اس کے ساتھ؟ پروفیسر. ٹھیک ہے، تو مجھے جب میں نے اس کلپ کو آن کیا تو وہ شادی پر بات کر رہے تھے کہ شادی جو ہے ہمیں اپنے کلچر کے مطابق کرنی چاہیے. شادی کو ہم خدا کے اپنی شادیوں میں خدا کو ایڈ مت کریں، آپ اپنے کلچر کے مطابق جو ہے شادیاں کریں. تو میں اس کی یہ بات سن کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پروفیسر ہے اور جتنے پروفیسر اس کی بات سنیں گے وہ اس سے ایگری ہو جائیں گے کہ چونکہ یہ پروفیسر بات کر رہا ہے اور ایسا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، اگر دنیا کے کلچروں کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے تو پھر اس کتاب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اس کتاب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلچر ہمارے پاس ہے، جینے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، کھانے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، سونے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے. کون سی چیز آپ کو چاہیے، کس چیز کو آپ اڈاپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑے کپڑے پاؤں لگ پے ہیں، ایشیا سے ہونے ہیں بٹے لائن لگ پے، تو پھر ہم اپنی آزادی سے جینا شروع کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نزدیک میں ہمیں بائبل کے کلچر کو فالو کرنا چاہیے کہ دنیا کے کلچر کو؟ یہ سیاسی بیان نہیں دینے، یہ تسی ہاں کرنی ہے تو بات تسی فالو نہیں کرنا. یہ تو نہیں کہ آپ یہاں کہہ دیں اگر اتنے کسی بھی کہہ دیتا نہیں دنیا کے نال بھی چلنا. تو یہ مسئلہ آپ معجزات لوگوں کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتے؟ میں اس بات پر خداوند سے ریسیو کر رہا تھا کہ معجزات لوگوں کی لائف میں نہیں ہوتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، 1000 کراؤڈ ہو تو اس میں سے 4 یا 5 معجزات ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہی ٹیسٹمنی ہوتی ہے، اسی سٹیج پر وہی ٹیسٹمنی آتی ہے، وہی گواہی ہوتی ہے اور لوگ شادمان ہو کر جاتے وہ جی اوتھے کرنے نو اکھاں مل گئیاں تے باقی 999 نہیں آ گئے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خداوند آپ معجزات کے، تو معجزات تو پھر ہونے چاہیے، پھر تو بڑے بڑے کام ہونے چاہیے، کنٹینیو ہونے چاہیے. ویڈیو والے بھائی یہ سیڑھیاں ذرا دکھاؤ لوگوں کو کیسے آپ بیٹھے ہوئے جو لوگ سنڈے کو چرچ نہیں آ سکے تاکہ وہ دیکھیں کہ عبادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے بھی کمروں کے اندر، روم کے اندر، باہر بھی کسی بھی طریقے سے لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سیڑھیوں پر دیکھ لیں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بارش کی وجہ سے ٹینٹ نہیں لگا سکے. ٹھیک ہے، صرف بتانے کا یہ مطلب ہے یہ آپ کے پاس گواہیاں ہوں گی. ایک ٹائم آئے گا آپ یوٹیوب آن کرو گے اور یہ گواہیاں لوگوں کو سناؤ گے، آپ کوئی کدی اینج بھی عبادت کی. کلیسیا کے اندر اگر ٹیسٹ منی نہیں بنے گی، ٹیسٹ منی گواہی آزمائش سے نکل کر بنتی ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ لائف میں چاہتے ہیں معجزات آپ کی زندگی میں ہو تو آپ بائبل کو فالو کریں، پھر معجزات ہوتے ہیں. اگر آپ ہماری کلیسیا جو ہے ان کی زندگی میں جو کلچر ہے، جو دستور ہے وہ دنیا کا ہے اور معجزات ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند سے لیں. بائبل کے اندر میں چند مثالیں آپ کو سناؤں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہاں کسی کلچر کا استعمال نہیں ہوا. جہاں بھی کوئی معجزہ ہوا دستور سے ہٹ کر ہوا، کلچر سے ہٹ کر ہوا، دنیاوی عقل سے ہٹ کر ہوا. معجزات اگر کلیسیا چاہتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہو تو پھر آپ دنیا کے دستور کے ساتھ مت جئیں، دنیا کے کلچر کے ساتھ مت جئیں. آپ فالو کریں کہ آپ بائبل کو پڑھنے والے ہیں، آپ فالو کریں کہ آپ بائبل کو سنانے والے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بائبل کے کلچر کو فالو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ پتہ نہیں کی کرنے دے یا پھر وہ کرسچن ہے ہی. آئے ذرا پڑھتے ہیں، احبار کی کتاب نکالیں میرے ساتھ. چیپٹر نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے. 20ویں باب کی 23ویں آیت ہے. احبار کی کتاب ہے، پرانے عہد نامے میں سے ہم 22ویں سے پڑھ لیں گے. خدا جب کلیسیا کو نکال کر لایا فرعون مصر کی غلامی سے
लानतों से छुड़ा कर लेकर आया। उस वक्त खुदा ने अपनी कलीसिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कानून दिया कि ये कलीसिया इस तरह से चले दुनिया के अंदर। देखे, मैं ये यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मैसेज सुनेंगे, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। अगर तो वो मिस्र के कल्चर में वैसे जिंदा थे, मिस्र का कल्चर उनको वैसे ही इल्म था, तो खुदा को 613 कानून देने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता भाई जिवें मिस्र के लोग जिਉਂਦੇ ने तुसी भी इंदी जिया करो। जब कलीसिया को खुदा ने निकाला, वो तकरीबन 20 लाख के करीब राउंड अबाउट लोग थे। कितने लोग? 20 लाख लोगों को खुदा ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक दस्तूर दिया, एक कानून दिया। और आज की जो मौजूदा कलीसिया, जो मसीही कलीसिया, वो भी गैर कौमों से निकल कर आ रही है। तो इनका भी कोई दस्तूर होना चाहिए कि नहीं? साडी जिंदगी च खुदा दे कलाम दा कोई दस्तूर नहीं, इसलिए ते हर बंदा ही मजबूर है। की है? उतो आते ने असी बेकसूर है, साडा कोई कसूर नहीं, हाँ कीता ही कुछ नहीं। आप अभी जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। आए पढ़ते हैं। सो तुम 22वें आयत से पढ़ रहा हूं, अहबार की किताब 20वां बाब उसकी 22वें आयत। सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना, उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूं तुमको उगल ना दे। वर्ड देखिए कैसा है, जिस मुल्क में मैं तुमको बसाने के लिए ले जा रहा हूं वो मुल्क तुमको उगल ना दे। उगलने से मुराद की जिथे तुसी वसे आना, जिथे तुसी वसे ए चुक के तानू बाहर ना मारे। अब आप अगर इस सवाल पर इस आयत को घर में 25 मरतबा पढ़े, लोगों को उगलते हैं, लिखा वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसा रहा हूं तुमको उगल ना दे। उगलना आप समझते हैं? जो कुछ आप खाते हैं, जब आप वॉमिटिंग कर देते हैं, गोया आपने उगल दिया। जिस मुल्क में खुदा बसा रहा है वो कहता तानू उगल देगा, तानू बाहर कटेगा। अगर मैं गलत नहीं ते इथे इंज ही होंदे है, इथे जिथे तुसी रहन दे इंज ही होंदे है। अगर तुसी मनो ते भावें खुदा आपको किसी कंट्री में, किसी मुल्क में इसलिए लेकर नहीं जाता कि ऐसी उथों के नमूने बन जाएंगे, ठीक है? इसलिए लेकर जाता है ताकि आप जाकर वहां दुनिया का नूर बने और बताएं कि नूर हम है। नूर आपको बाइबल कहती है आप दुनिया का नूर हो, यानी दुनिया दी रोशनी हमसे नहीं है ते नूर ही नेरा बन के टुरिया फिरे। ते उंज फिर लोकां दा फलसफा पता की चलो परा दिल साफ होना चाहिए, ती साफ होना चाहिए। ओ भाई दिल साफ, अच्छा तुम भी दसो कि वेखना है तो फेफड़े खोल के दिल वहाउना जी, की वहाउना जी मैनू दसो। ए मेरा दिल वेला दिल साफ ही, तू सर्व ना धोना दिल तेरा साफ है, कितना को दिल साफ है? की बाइबल के अंदर लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अच्छा हुण हाथ चुको किने किने खुदा रब वेखिया ते मावी ते दिल ते किसे दा भी साफ ना है। ए वो दिल नहीं जेड़ा सिर्फ ते सोडे ना साफ हो, ए वो दिल वा जेड़ा कलाम ना साफ हो, ठीक है? इसी से ये साफ होता है, वरना ये सब झूठ है, ये फलसफे हैं। दिलां च रब होना चाहिए, मैं ते जिथे वेखिया जेड़े आ बहुता कहंदे ने दिलां च रब, ओ नहीं बहुती लड़ाई दी वजह होंदी है। वो लोग कलीसिया में वही झगड़े की वजह होती है। जरा कहते दिल साफ होना चाहिए, दिल भरावो वेखो ना वेखो ना वेखो ना वेखो ऐ करके लोग की आंदे आ ठीक आंदा। आगे पढ़े जो खास बात है जिस पर बात करनी है, उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसलिए मुझे उनसे नफरत होगी। मुझे उनसे, खुदा कहता है कि वो कौमें जो वो दस्तूर अपनाती हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके कानून है, वो उन पर चलती हैं और मुझे उनके दस्तूरों की वजह से उनसे नफरत हो गई है, उनकी रस्मों रिवाज की वजह से उनसे नफरत हो गई है, उनके कामों की वजह से नफरत हो गई है। लेकिन तुम उनके दस्तूरों पर नहीं चलना, तुम उनके दस्तूरों पर नहीं चलना। दस्तूर क्या होते हैं? दस्तूर सिंपल सी बात है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। शादी क्या होती है? शादी दस्तूरों से होती है। और क्या होती है? शादी की जितनी रस्मात हैं आपके बाइबल के दस्तूर है। दसो मुझे, आपके बाइबल के दस्तूर है, ठीक है? मौजज़ात कलीसिया ले ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने चलना दुनिया के दस्तूरों के मुताबिक किया। आपकी शादी बाइबल के दस्तूरों के मुताबिक है? मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं है, सवाल ही पैदा हो ही नहीं सकती, ठीक है? हमारी शादी के दस्तूर किन कौमों के हैं या किन कौमों में हम रहते हैं, किन के असूलों के मुताबिक आपकी शादियां हो रही हैं? 15 मिनट नहीं, 15 मिनट ज्यादा, सिर्फ 10 मिनट निकाल। इसको अलावा जो कुछ भी अगो तुम आप हिसाब ला लो,
सिर्फ 10 मिनट निकाह के आपकी बाइबल के सूलों की मजबूरी है कि जो पादरी साइन ना कीते ते लोग आखना ए तो विआह जायज नहीं। तुसी मैनू दसो, आप मुझे ये बताएं, मैं आपको बताता हूं, अगर खुदा किसी चीज को पाक ना ठहराए तो पादरी का सर्टिफिकेट जिस पर वो साइन लेता है, ठीक है, ऐसे कुल जहन कर तालियां मुंडा सैन तालियां। दसो रब पाक ना करूं ते आ पेन पाक करूंगा रिश्ते ए पेन पाक कर दूंगा, पादरी साहब पाक कर दूंगे। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि इस रिश्ते को खादम पाक करेगा। बाइबल में लिखा मैं तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। इस रिश्ते को तो रब पाक करदा, ताड़ियां रस्मां रिवाज ही पाक करदा, आपके दस्तूर इन चीजों को पाक नहीं करते। खुदा यहां पर कहता है तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे निकालता हूं मत चलना। अब अगर ये आयत कोई सुनेगा तो वो ओए तो पुराने अहदनामे चो सुनान दिया ते नवे अहदनामे की दा पागल हो जाओ। क्या नया अहदनामा ये कहता है कि मत मार छड़ो अपनी, तानू होश ही ना रहे? क्या नया अहदनामा ये कहता है हमने नए पुराने के रफड़ में लोगों को फंसा कर ते लोग अगे वो काम चाहते हैं जिहदे च उन्हां नूं साह निकले, उन्हां दा जिहदे च उन्हां दा साह निकले। ठीक है, शैतान ने इन्ने बोझ पा दिते ने ते कलाम दा बोझ जरा भी नहीं चुकदे। कलाम दा बोझ, गुनाहां दा बोझ, कर्ज़ियां दा बोझ, दुखां दा बोझ, इन्ना बोझ मोढियां ते चक के लोग टुरी जांदे ने। मैं ना तुसी कलाम दा बोझ अपने मोढियां ते रखो, यीशु सारे बोझ तुहाडे ला दूंगा। ठीक है, लिखा है मेरा जुआ मुलायम है, मेरा जुआ मुलायम है, वो ले लो। मेरी शरीयत कामल है, मेरा कानून, मेरे आइन, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन कामल है, इनको लो और इन पर चलो और इनको फॉलो करो। ठीक है, तो ये हमारे दस्तूर जो है जिन पर हम चल रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम ये है इन्हीं दस्तूरों के मुताबिक। और आपके जब घरों के अंदर बड़े ध्यान से सुनना, आज हम रूम में बैठे निगे हुए, आपके घर में जब बेबी पैदा होते हैं तो उनके सारे दस्तूर कहां से आपने लिए? रात को भी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, मैं आपको एक टेस्ट मनी सुनाने वाला हूं। अजे झंड ला के साम छड़ दियो, ये किथों सीखिया जे? कभी ना किसी आने पादरी ने पूछा नहीं कि एक किथों की है। मैं आपको एक बहन की टेस्ट मनी सुनाता हूं, अगर माइक ने आवाज दी। आवाज आ रही है? शुक्रगुजारी वाला और ये भी मैं चलो मैं कुछ तस्वीरें भी दिलानी है जे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਨੇ ਕਾਟ ਚੁੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਐਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੇ ਹਮੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁਣ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, मेरे नाल गल की दुआ साढ़े वास्ते की ते मैं थोड़ी बेहद शुक्रगुजार ते थोड़े नाल एक रिक्वेस्ट मेरा मैसेज मेरी जेडी गुबारी है शुक्रगुजारी दी अरदास में अपनी कलीसिया दे विच दसियो मेरा मैसेज सुनायो। अब हुआ क्या, मैं आगे बताता हूं। ये उसने रिक्वेस्ट किया कि आपने ये टेस्ट मनी सुनानी है। थोड़ा सा जूम कर लो कैमरा, YouTube वाले हो, ये देखिए ध्यान से आपने देखना है। मेरी कोशिश होगी बाद में आप YouTube पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको देखें। ये बहन है, ये मेडिसिन इसके बच्चे को लगनी थी। ठीक है, मैंने कहा भी तुम झंड ते नाफ जी कट के सामभ दे। ठीक है, ये तुम सांभियां ने, उन्हें आख्या बिल्कुल पादरी साहब सांभियां ने। मैं आख्या इन्हों सट दो। बहन की है, मैं आपको गवाही सुना रहा हूँ। ये देखिए कितने सोहने छापरा च नाफ कट के धरी, जूम करके दिखाएं जरा। लेकिन उसकी ताबियादारी ये है कि उसने इनको जलाया। जब मैंने उसको बोला उसी टाइम उसने जला दिया। ने कहा कि भाई साहब सानू नहीं पता, उसी टाइम उसने इनको जला दिया, उसी टाइम। ठीक है, मैं पैकिंग तो बड़ा सिया है, बच्चे दी नाप कट के ते झंड ये कित्थों सीखिया सही दसियो जे मैनूं। चलो ये बंदियां तो मैं मामन तो पता होगा सही कहते हैं, कित्थों सीखिया? वो सही कह रहे, कहां से सीखा है?
ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋ। बाइबल वड्डी वडेरी है कि वड्डे वडेरे वड्डे वडेरे। मैंने एक बेटी से भी ये कहा जला दे, आती हो मेरी सासू मान, वो मैं सासू बेटी है किस बड़ा दसो कौन बड़ा। तो ये मैं देखें ये सारे मसाइल हम लोगों को क्या क्या कर पागल हो जाते हैं, तुसी तो समझ नहीं आती। अब मैं आपको ये बताता हूँ इसको क्यों रखना नहीं चाहिए, साथ वाले से के ध्यान से ये क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे रीजन सुने। बेबी जब मां के पेट में ग्रोथ करता है, जिस वाटर बॉल के अंदर बेबी बनता है वो यूरन होता है, नपाकी होती है, नपाक फुजलों के अंदर इंसान बनता है, ठीक है। अब आप झंड पहले दिन दी ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ नाफ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सांभ के धर देंगे जी। वो बच्चे बाकी तो आप बेबी को नहलाते भी हैं, फिर उसको नहला देते हैं, उसको कितनी बार नहलाते हैं, लेकिन पहले दिन दे ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉਹਦੀ नाफ ਕੱਟ के सिर्फ दो चीजें ਤੁਸੀਂ रख देंगे। अब ये चूंकि नपाकी की वो सारी चीजें थी और ये नपाकी आपने अपने बच्चे की संभाल के रख दी है। आप मुझे मैंने बताया था YouTube पर एक मैसेज है, फफूंदी गंदगी पर बदरूहें आती हैं, गंदगी पर स्पिरिट्स आती हैं। तो आपने चूंकि ये चीजें रख दी हैं, नपाकी आपने अपने बच्चे की एक्चुअल में नपाकी संभाल के रखी है। समझ आ रही है आपको? आपने अपने बच्चों की नपाकी को संभाल के रख दिया, अब उनकी जिंदगियों में ये चीजें आती रही और उसका नतीजा आप अपनी नस्ल को देख सकते हो। किड्डी को सियाणी है, किड्डी को सियाणी, क्योंकि उन पर नपाक, आपने उनकी नपाकी संभाल के रखी हुई है, ठीक है। वो एक भैन तो मुझसे लाड़ी पड़ी ले, हाँ इतना की पादरी साहब इतना की मैं तुसी अपने बच्चे की पहले दिन की पोटी नहीं सांभी सांभो आप ही देखेंगे कौन सी हिकमत है, कहां से आए हैं दस्तूर, कित्थों निकलियां गल्लां, कित्थों सीखियां ने गल्लां कलीसिया ने, ठीक है। तो ये कहां से आई हैं ये सारी चीजें, ठीक है। बेटी अच्छा वो तो बाद सवा महीना करना है, ये बात भी मैं जाते जाते क्लियर कर दूं, सवा महीना करना है। बाइबल में सवा महीना मुनक्किद भी नहीं है, ठीक है। बेटी होवे ते कुड़ी नूं 2.5 महीने तक घरों नहीं निकलन देना। कितने महीने? जे धी पैदा होवे ते 2.5 महीने तक बेटी जेड़ी है रूम च रहे, ओनू कोरोना है। गल सीखो मेरी, हुण मैं दसना बाइबल की आंदी है, सुनो। बाइबल आती है वो बेटी जिस बेड पर बैठेगी वो बेड नापाक हो जाएगा। बाइबल कहती है वो जिस चादर को हाथ लगाए वो चादर नापाक हो जाएगी। बाइबल कहती है कि वो जिस बर्तन को हाथ लगाए वो बर्तन नापाक हो गया। तो आप मुझे बताया उनको तो 2.5 महीने कोरोना हो गया, कोरोना तो वो तो कोरोना जो लंघ दिया ने बेचारी। मैं तो समझ आऊगी जिन्हों ना ना उनको यूट्यूब पे मैसेज आके सुन दस्तूर ते असि अज निकले बेकसूर नहीं समझ। अब मैं पढ़कर यकीन माने मैं अंदर से हिल गया कि मसीह के फजल को कलीसिया ही नहीं समझ पाई कि बेटी अगर अपने उन आयाम के अंदर हो जो महाना होते हैं तो उस पर भी वो बेड पर बैठेगी तो बेड नापाक है, चद्दर पर बैठे चद्दर नापाक है। तो आप मुझे बताइए तो कोरोना है, ये तो कोरोना के सिम्टम्स हुए ना। जिस चीज को वो हाथ लगाएगी वो तकरीबन 1 वीक 15 दिन तक वो ऐसे ही रहेगी, नपाकी के अमल से गुजरते रहेंगे सारी चीजें। तो ये तो कोरोना है। आज भी ऐसा ही होता है ना, जिन्हों कोरोना निकलू ओनू तुसी 15 दिन किथे ढक देते हो। तो बेटियां तो इस अमल से होती हैं, और अगर बेटा पैदा करे तो फिर वो 1.25 महीने गोया 40 दिन तक अपने रूम में रह बाहर ना निकले। इन्हां ने की वेख्या ने ढाइयां दी, इन्हां नूं समझ नहीं आई। इन्हां कहा कुड़ी ते मुंडे दा 1.25 महीना इकट्ठे करो ते ओ भी खिचड़ी पका की पका के फिर एडे सियाणे ने घर चौलां दी खिचड़ी पकांदे ने चने वाली 2 किलो चौल विच खिचड़ी पका के। अब ये मैसेज बहुत सारी कंट्रियों में लोग सुन रहे हैं, सोचते होने नहीं कि उत्थे की होण दिया है। खिचड़ी पका के मुंडा बाहर वधाउण लगे, किथे वधाउण लगे? मां दी कोख च किने वधाया? हुण बाहर तुसीं वधाउणा है ना, बेवकूफां दी पंड। अज तक नहीं किसे खोली तो सगों कंडा मार छड़ियां, ठीक है। कुड़ी वधाउण लगे मुंडा, यार मां की कोख में कौन पढ़ा रहा था उस बच्चे को? मां की कोख में खुदा पढ़ा रहा है, हुण तुसीं वधाउणा है उन्होंने, ठीक है। कैसे पास, ये कितनी बड़ी हमाकतें हैं। कब तक चलेंगे ये दस्तूर और कब तक ऐसा होता रहेगा? जब मैंने इस बहन से कहा, जब प्रेयर कर रहे थे तो खुदावंद ने कहा इसको बोले ये सारी नापाक चीजें अपने घर से बाहर निकाले। उसी टाइम वो कहती मैंने उन चीजों को जला दिया। साढ़े मैं कई बार मैं पूछन कितने छुट्टी है, पानी की छुट्टी है, कितने छुट्टी है, मैं कितना इन्हों डर पिया, ठीक है। ते खून के रिश्ते कूड़े वांगू सुट दिते, खून के रिश्ते कूड़े वांगू सट दिते, ठीक है। तो मैं उसी टाइम उसने जलाया और वो कहती उसी टाइम मेरा बेटा बेड से उठ गया।
उसी टाइम मेरा बच्चा उठकर बैठ गया और खेलने लग गया, और फिर उसने ये सारी वीडियोस और मुझे सेंड की, उसने कहा ये गवाही आप जरूर कलीसिया में शेयर करें। ये दस्तूरों ने लोगों को पागल किया हुआ है। कलीसिया तब तक पागल रहेगी, तब तक रूहानी नहीं होगी, जब तक वो अपने दस्तूर नहीं छोड़ेगी, जब तक वो दस्तूरों से बाहर नहीं निकलेगी। खुदा उनसे कहता है तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे निकालता हूं मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसलिए मुझे उनसे नफरत हो गई है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। और यही वजह है, यही वजह कलीसिया की आज भी, और कलीसिया इन्हीं दस्तूरों के मुताबिक चल रही है, और आज भी इसी तरह से चल रही है। जे किसी ने दिन पालन शादी हो जाए, ठीक है, उन्होंने कहने बाहर ना निकल, तू तेरे दिन पै गए नहीं, ठीक है, ओदे से तेरे माल बनन गए, तो उन्होंने पता नहीं की करनगे। एक भाई ये तो उसके दिन पड़े, तो कहंदा मैं यार तू उत्थे फलानी जगह ते आंदा मैनू ते करो नहीं निकलन देंदे, तेरे दिन पै गए ने, ते मैं जंज वाले दिन तेरा एक्सीडेंट हो गया, ते फिर की करेगा भाई? सवाल है ना भी तुसी तेन दग्या मेरे दिन पे ने, ते जंज वाले दिन दा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ये भी केस हुआ। एक दोस्त था कंपनी में मेरे साथ जॉब करता, तो एक वीक उसके दिन थे, उसने कंपनी से छुट्टियां ले ली। मैं कहा काम ते नहीं होंदा, वो भाई सब दिन पै गए ते घर दे जान नहीं देंदे। मैं कहा चलो ठीक है, तेल में दिया वाले दिन शॉपिंग करने निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, ते फिर रोवे कार दे भी रोड तेनू आख्या तेरे दिन पे ने ना निकली बाहर। मैं कहते जंज तेरे घर ही ते टिका लेनी, भी तो बाहर कड्ढनी ना, कि घर ही जाके ढोल दे कुड़ी को कहना भाई कित्थों सीखियां, कहां से ये पागलपन आया? ये दस्तूर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने खुद बना लिया, और ना भी होते अम्मा नु ते सारियां गल्लां दा पता है, अम्मा नु ते सारियां गल्लां दा पता है नहीं कंध नु हत्थ ला दे, नहीं छापा ला दे, तू नवी नु इंज कर, नहीं तू इंज कर, ओ इंज दी करात लैंदी फिर इंज दी करदियां नहीं है जितना मिलने ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो ये कहां से सीखे आपने दस्तूर? आप किसी सियाने से पादरी को ढूंढे और उससे पूछे कि हमने किन दस्तूरों के मुताबिक अपनी शादी कर दी, बाबरकत टाइम होगा आपका। आप जिंदगी में कुछ करने के लिए निकले तो सही। दस्तूर मैं पिछले संडे शनीमी औरत पर बात सुना रहा था, उसका बेटा मर गया, उसकी जिंदगी में मौजज़ा ये हुआ कि उसका बेटा जिंदा हुआ। कैसे जिंदा हुआ? आप सलातीन की किताब पढ़ें, वहां पर लिखा वो रोई नहीं, उसका बेटा मर गया, वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, बेटा मर गया। मैं कहना पढ़ ही लो, फिर से पढ़ लें, इसमें और भी बातें सीखने वाली हैं। दस्तूर की बात कर रहा हूं कि दस्तूर के मुताबिक मौजज़ात नहीं होंगे। अगर आप दुनिया के दस्तूर के मुताबिक चलेंगे तो मौजज़ात आप रिसीव नहीं करेंगे। दूसरा सलातीन चौथा बाब निकाले, मैं जल्दी से पढ़ूंगा, मैं पिछले संडे भी से पढ़ रहा था। एक रोज ऐसा हुआ कि एलीशा शूनेम को गया, वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहां चला जाता, तो उसने अपने शौहर से कहा देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दे, उसके लिए एक पलंग मेज और चौकी शमीदान लगा दें, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहां ठहरे, जब कभी आए तो वहां। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और कोठरी में जाकर सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा इस शूनेमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और उसके सामने खड़ी। फिर उसने अपने खादम से कहा तू इससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तू चाहती है कि बादशाह के फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा उसके लिए क्या किया जाए? तब जहाजी ने जवाब दिया बाकी इसके कोई फर्जंद और इसका शौहर बुढ़ा है। आप मुझे बताएं ये दस्तूर नहीं हमारा कि पादरी साहब आए और हम उसको अपने मसले ना बताएं और प्रेयर करें। उसने अपनी खिदमत की है, बस उसने ये नहीं अपने दुख को उसके सामने पेश नहीं किया, मेरी औलाद नहीं, मेरा बेटा नहीं, उसने बस उसकी खिदमत जी भर कर की है कि मैं उसकी खिदमत करूं जितनी मुझसे हो सकती है। और आगे लिखा है तब उसने कहा इसे बुला ले। जब उसने उसे बुला लिया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा हुआ। उसने कहा नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो हामला हुई जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। आप मुझे ये बताएं, वो बूढ़े हो चुके हैं, दुनिया के तमाम दस्तूर, दुनिया के तमाम तरीके उन्होंने आजमाए होंगे, मेडिसिन आजमाई होगी और उनकी जिंदगी में कोई मौजज़ा नहीं हुआ। खुदा के खादम के कहने पर ही उनकी लाइफ में ये मौजज़ा हुआ। दुनिया के दस्तूर से जब मैं नए जोड़ों को देखता हूं, उनकी औलाद नहीं होती तो वो खादमों से कहते हैं प्रेयर करते हैं, ब्लेस हो जाते हैं तो दोबारा डॉक्टर को छोड़ जाते हैं।
मैं क्या हूं तुम की लैन गए थे खान गए भाई। तो आप पिछले 5-6 माह से आपकी शादी हुई है और आप कहते हैं हमें ब्लेसिंग नहीं है, हमें खुदा औलाद नहीं दे रहा, तो आप उसके बाद जब आपको मिली ब्लेसिंग आपने कहा खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने हमें औलाद जैसी बरकत दे दी है। अब आप उस बरकत को सेव करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर सेव करूंगा? मुझे ये बताएं, ये दस्तूर है। अब कलीसिया रफड़ जो निकलना ही है। आपने पादरियों से प्रेयर करवाई, खुद भी प्रेयर की, खुदावन ने आपको बरकत दी। खुदा आपको सिखा रहा था कि मैंने तेरे कामों की वजह से नहीं, मैंने अपनी ताकत से ये काम किया। जब बच्चा मां की कोख में ग्रोथ करता है उस टाइम आपको सारे डॉक्टर याद आ जाते हैं। ये जो ऑपरेट हो रहे हैं ना, ठीक है, ये सिर्फ अकल दे पुआड़े ने किदे, इस अकल दे बड़े पुआड़े ने इस बस दे घर इस बस दे घर ये सारा अकल दा रफड़े, सारा किदा रफड़े, अकल दा रफड़े। ये साडी अकल सानू जीवन नहीं देती, ठीक है। और जब लास्ट टाइम 9 मंथ के बाद बेबी मर जाए तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? I'm so he is no more, he is no more। मैं क्या हूं पढ़ने के तानु चो ये सिर्फ दस्तूरों की वजह से हो रहा है। कलीसिया ने खुदा के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर अपने तौर तरीकों से जीना शुरू कर दिया। इसलिए कलीसिया हलाकत में, कलीसिया टेंशन के अंदर, कलीसिया क्राइसिस के अंदर जी रही है, क्योंकि वो दुनिया के दस्तूरों को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। खुदा के जब जिंज मर्जी चाहिए, जो मर्जी करो, करी चलो से बरकत है नहीं। बरकत के लिए पास्टर साहब प्रेयर करो हम खुदा में ब्लेस। और जब बेबी कंसीव हो गया, खुदा ने बरकत दे दी, पावर दे दी, ताकत दे दी, उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि शुगर लो हो गई, मैं पूरी कराए मेरे को। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड लो हो गया है। की मैं दिल का था कंधा टकरा मार गया। ठीक है, नहीं कुछ नहीं खुदा नहीं उन्होंने अकड़ दी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ जरा सी भी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कलीसिया शोर पाओगी तो मेरी पता लगेगा। तो अपने ईमान को आप क्यों खराब कर रहे हो? क्यों अपने फेथ से इनकार कर रहे हो? आप खड़े हो जाएं, जो ताकत, जो ब्लेसिंग, जो पावर खुदावंद ने आपको दी है, खुदावंद उसे संभालेगा। तकीद पता क्यों है? सानू पट्टियां से सुट दे हो, पट्टियां से सुट दे, पर साडी कोख ने बच्चा रब्बा तेरे को नहीं सांभया जाना, ये डॉक्टर सांभूगा। उन्हें लिखी जाना अच्छा आप टाइम से आ, ये ना ये भी ले ले, ये मैं 2 और लिख रहा हूँ, ये भी ले ले, ये 3 और लिख रहा हूँ। हाँ ये कंप्यूटर पे 2000 दे दे, कितना सुकून होता पैसे देने से, ठीक है। खुदा का खादम कह के कल ने खुदावंद तानु ब्लेस कीता, ताकि ब्लेसिंग नु कोई नहीं खोएगा। तो यकीन नहीं कोने। कुछ लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ, वो पास्टरों को घर पर बुलाते हैं, दुआ करो खुदा साडे बारे की आंदा है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਣਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਐ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? मैं किसके बारे कहने हैं? खुदावंद बारे कहने। जब आप पुलपट से जारी होने वाले कलाम को नहीं सुनते, आसमान से खुदा आपकी कभी नहीं सुनेगा। अभी आप ये गा तो रहे थे, रब्बा बोली मेरे लिए, बोली मेरे लिए, बात तो तुम पादरी ने आते खुदा ने पूछी की आता मेरे लिए, तो आप तेरी तो कह रहे हो, क्यों कह रहे हैं भाई? संडे को वो आपसे तो बातें कर रहा था, और किसे कर रहा था? वो पैगाम, वो मैसेज जो आपने सुना है, उस पर फॉलो करें, उस पर पूरा भी काम करें। अगले संडे अगर फिर खुदा की आवाज भेजें, फिर उस पर काम करें, फिर उस पर काम करें, फिर उस पर काम करें, आप खुद ही प्लस होते जाएंगे। खुदा संडे के दिन दीवारों से कलाम करता है। फिर लोगों को मैंने देखा है 500 रुपए वाला घर बुलाने में इन्हें चाहिए, 500 तो भी थोड़ा बल्कि सस्ता आ जाता है, 200 रुपए आ जाता है, ठीक है। आए हालेलुया, आपने तो आखिर में पूछा है खुदा मेरे बारे की आंदा है, वो भी आंदा, तेरे बारे कुछ भी नहीं आंदा। तो भाई वो नहीं गल करदा। 10 साल बाद इब्राहिम ना खुदा गल करदा है। कितने साल बाद? मेरी जिंदगी चेंज होया। खुदा मेरे नाल 2008 च गल कीती ते उदों बाद 2018 च आके कीती। 10 साल बाद खुदा मेरे नाल दोबारा बोलिया ते आज जिन्हां नाल रोज ही बोलदा, इन्हां तो भी मैं बड़ा परेशान हूं। अज मैनूं मैं आख्या सो, अज मैनूं मैं तेरी फुफी दा मुंडा तेरे कोल बैठा रहिंदा, पागल बना दिया। कलीसिया दी मत विच ही पई। आज क्या हो गया? आज मैं क्या बह जो आराम दा, कुछ भी नहीं होया, ठीक है।
जमाने गुजर के रोया वेख के होया कख भी नहीं ओही भांडे खाली ने ओही कपड़े सड़ गए ने ओही रिश्तेदार लड़ गए कख होया मैं रोया वाले नु वेख के उन्हां दा रोना ही सुन परेशान वहीं पर बैठे हुए चार जी इकट्ठे करके ते को हालेलुया खुदा मैनू वहां दिया मैं तैनू वहाए मैनू ना वहाए 10 साल बाद रब बोलिया तां मैनू कढ के मेरे घरों ले आंदा चल इत्थों चलीओ खुदा जदों बोले ओ ते जीऊं नहीं देंदा रात वो तो जदों तक अपना काम करा ना लो तुहानू सौण भी ना दऊगा शुक्र करो रब तुहाडे ना बोले वो बोलिया तो डाडे ही बोलेगा आप लोग पता नहीं क्या समझ क्यों कलीसिया पागल हो गई है ठीक है वो एक कम दा दुआ कर मैं देखा एक काला जिहा बांदर काला बांदर आ बैठा ते तुहाडे सामने समझ आ रही छड़ तुसी खुदा जेडी गल करो पूरी करो नहीं समझ मैं परेशान होता हूं मैं हिंदी में चला गया शक्ल तो मैदारी गल मेरा पादरियां उठे नहीं आया इनके वो पेट नहीं है तो मैं घर में बैठा वहां पर एक उस्ताद जी आ गए उस्ताद जी मैं चुप करके सर्दी का दिन था मैंने कंबल लिया और चाय पी रहा था उसने प्रेयर करना शुरू कर दी जब प्रेयर की तो कहता है हो मैं देखा खुदा ने नवे बुए खोले ने तुम्हारे अच्छा वो ये कह कर चला गया मैंने कहा चलो खुदावंद ने कोई नबूवत की थी खुदावंद ने पूरा करे ते दूजे दिन ही ओदा मुंडा आ गया अम्मा मैनू उन्हें नौकरियों कर छड़ी ओ मैं आखा दा ही नवे बुए खोल छड़िया ते पुराना भी बंद कर गया ने कलीसिया सियाणी हो जाए सब बोले नाल दिन सियाणी हो जाए ठीक है हमाकत से बाहर निकले हमाकत से और रब ताडे ना बोलूगा तुसी क्यों डरते हो रब ताडे नाल गल्लां करूंगा अपने दस्तूर बदल दे अपना स्टाइल बदल दे बस अपने दस्तूरों को बदल दो जीने का ढंग चेंज कर दो बाइबल के कल्चर को फॉलो करो ठीक है जरा नहीं मानता तुसी मेरा नंबर दे दियो की दे दियो और जितनी मिस्ती करेगा मेरी ही करेगा ना तानू कुछ नहीं कहेगा ठीक है तो ये इस औरत को खुदावंद ने ब्लेस किया अब मैं आपको बताने लगा हूं जैसा एलीशा ने कहा ये औरत ब्लेस हो गई खुदा ने उसकी कोख में फर्जंद दिया आगे सुने क्या हुआ लिखा है आयत नंबर 17 सो औरत हामला हुई जैसे एलीशा ने उससे कहा था मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा हाय मेरा सर हाय मेरा उसने अपने खादम से कहा इसे उसकी माँ के पास ले जा जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा इसके बाद मर गया अब सर में दर्द हो तो पैनाडोल तो खानी चाहिए कि नहीं सर में दर्द हो तो कोई ना कोई चीज तो खानी चाहिए लेकिन इस औरत को आप देखें बेटा सर के दर्द में तड़प रहा है लेकिन वो किसी हकीम के पास नहीं गई उसने दस्तूर काट दिया असूल यह है कि वो जाए और डॉक्टर से मेडिसिन लेकर दे उसने उस असूल को काट दिया और बेटा उसके घुटनों पर बैठा ही मर गया और मां ने शोर तक नहीं किया दुनिया का दस्तूर यह है घर से कुछ हो गया तो मां खप पाए मां की पाए शोर पाए हाईवे फाड़ लो हाईवे तार लो हाईवे उठ गए हाईवे बह गए हाईवे टुट गए हाईवे मर गए ये दस्तूर है दुनिया का आप किसी के मर जाने पर ना रोए तो दुनिया तानू तद भी नहीं जाऊंगी इनू रे खुशियां तद नहीं रोया जे तुसी दिल घुट के रखो कि मैं नहीं रोना ठीक है ते तद भी तानू लोकां जिउं नहीं देना क्योंकि दुनिया का दस्तूर है को मर गया तो रोवो ठीक है ये दुनिया में ये औरत रोई नहीं मैं बताना ये चाहता हूं जब आप दस्तूरों से हट जाएंगे फिर मौजज़ात होते हैं फिर मेडिकल होते हैं आपकी जिंदगी में आगे इसने क्या किया दोपहर तक बैठा रहा इसके बाद मर गया तब उसकी मां ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर यह दस्तूर नहीं है मुर्दा बच्चा मां उठा ही नहीं सकती क्या उठा सकती है दस्तूर यह है रो चिल्लाओ इकट्ठा करो और लोग उसे उठाएं लेकिन मां खुद नहीं उठाएगी यहां पर वो दस्तूर काट रही है दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही कि मुझे ऐसा करना चाहिए वो अपने ट्रस्ट पर खड़ी है अपने यकीन पर खड़ी है कि मैं खड़ी हूं खुदा उनके साथ जिस खुदा ने मुझे ये दिया है जिस पादरी दे वसीले मैनू मिलिया ये मुर्दा ओदे पलंग ते लटाऊंगी आप समझ रहे हैं ये उसका फैसला था कि ये मुझे बच्चा इस खादम की प्रेयर से मिला अगर ये मर गया तो ये सिरे चाड़ांगी किदे सिरे आज कलीसिया डबल पॉलिसी कलीसिया की है डबल पॉलिसी ब्लेसिंग खुदावंद कोलों ते दस्तूर दुनिया कोलों ठीक है ब्लेसिंग खुदावंद कोलों ते शुक्रगुजारी ते खुश रहे ते चल ते मामा आया मैं नहीं क्या किन्नियां समझ आउंदी ताड़ा शोर मेनू दसूगा आप दुनिया का दस्तूर ये देखें ये ट्रस्ट है
देखिए मैं पिछले संडे इस पर ये सिखा रहा था मूड ऑफ, उसका मूड खराब, मूड पर खुदावंद ने और भी मुझे सिखाया। उसने कहा शैतान ने लोगों ने मुंह ते इसलिए लानत कर दी है कि इन्होंने मूड ऑफ रहन, क्योंकि मैंने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। शैतान ने इंसान के फेस पर कर्ज किया है, लानत कर दिया कि मूड इनके ऑफ रहे, क्योंकि इनको मैंने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। और शैतान चाहता है कि इन्होंने मुंह ते 12 बजे रहन, इन्होंने मुंह ते 12 बजे रहन ते गली गली भजे रहन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुश रहना सीखो, मूड फ्रेश रखना सीखो, क्योंकि शैतान ने कर्ज किया है, शैतान ने इंसान के फेस पर कर्ज कर दिया है कि एवरी टाइम इंसान का मूड खराब है बस। और मूड खराब करने की वजह कोई और नहीं होती, या बीवी बंदे का मूड खराब करूगी तो या बंदा बुढ़ी का मूड खराब करूगी। मैं ना मूड 1 मिनट के अंदर ठीक करो, 1 मिनट के अंदर सुलह करो, 1 मिनट, कितने मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उसे मनाना है, 1 मिनट के अंदर। और ये काम मर्दों को करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा मूड ऑफ रही है। मैं गलत हूं? मैं ठीक है? ये कर्ज है, आप खुश रहना सीखो। आपको मैं देखेंगे, मैं दो हिस्से मैंने इस मैसेज में इस औरत की जिंदगी से निकाले। पहला मूड ऑफ है, और दूसरी बात किसी दस्तूर को फॉलो नहीं किया उसने, वो दस्तूरों से हटकर यहां पर बिहेव कर रही है, दस्तूर से हटकर चल रही है। और खुदा देखें आगे क्या करने वाला। आगे लिखा है, पलंग पर लिटा दिया, दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा, जल्द जवानों में से एक को गधों में से और एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर क्या मेरे नाल चलो। मुंडे नु सिर पीड़ होया ना, ते हाय हाय मेरे नाल चलो, इनु चुको, मेरे को नहीं जे चुकिया जांदा। हाय ये चीज यार, ने आखा तू रहन दे ते नौकर कर दे, ये दस्तूर को फॉलो करने वाली बात नहीं है। उसने उसको काट दिया दस्तूर को। उन्होंने कहा तू अपना काम कर, पैलियां जे कणक बढ़ा, मैं आपे ही सांभ लेंगी। इत्थे मुंडे नु सवेरे नीचे आउण, फोन पहिला टोल जंदे, फोन बाबा जी ने छेती छुट्टी ले आई निकल जा, सियाणी हो जो, भैड़ी हो, क्यों बंदे दिहाड़ी निकाल देते। कितनों को समझ आ रही है? अपने हाथ हिलाओ, हालेलुया। आप देखें, बंदा बच्चा मार गया, इतनी स्ट्रांग वुमन, बच्चा मार गया। उसने कहा तू कणक दी वाढी कर, मैं आपे ही सांभ लेंगे सारे काम। वो जनाब उठी ते जो दुआ करने पाक रू तेरा मसा किथे आए, तू इधर मसे थले भी तू नहीं खलोना भाई, आप मसा के नीचे भी खड़े नहीं होंगे, ठीक है? खुदा भेजने के लिए तैयार है, आप खड़े नहीं होते। वो कहता है आदमजाद अपने पांव पर खड़ा हो तो मैं तुझसे बातें करूं, ठीक है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई? यहाँ पर बैठे हुए हम खिदमत दोस्त हैं, तकरीबन 1 करोड़ का काम है, यहाँ शुरू हम खड़े खुदावंद करेगा। मैंने बना कैसे करोगे? मैं तू करना है, मैं तू ते एडा डरने में खुदावंद करो, तुझे हर गल दी खुदावंद करे ही करे। आप बीमार हो जाए तो खुदावंद कहना बाहर जाना ही जाना। अब एवरी टाइम अपनी जुबान को सॉफ्ट रखिए, क्या रखें? सब बोले जी, सॉफ्ट करके बोले जी, बोले सॉफ्ट रखें। ब्लेसिंग आपकी ब्लेसिंग कोई नहीं छीन सकता, आपकी ताकत कोई नहीं है। जुबान को भी सॉफ्ट अंदाज से यूज करिए। उसने कहा तू अपना काम कर, एक जवान मुझे भेज दे, मैं छेती जाना तो मैं छेती जाना। ये सारा केस वहां पर चल रहा है, लेकिन किसी दस्तूर को फॉलो नहीं किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके बच्चे बीमार हो जाए तो आप उनको मेडिसिन नहीं खिलाएं, आपको खड़े होने के लिए सिखा रहा हूं कि आप खड़ा होना सीखें लाइफ के अंदर, ठीक है? पेट में दर्द है, हस्बैंड ने कॉल नहीं की, मुंह बना देता है, सेदा मैंने पूछेगा यार 10 पे सही हो ना, तेरे पेट से दर्द, तेरे गोली लिया दूंगा, दोनों को नजूमी है क्यों नहीं? मेरे को नजूमी थोड़ी है, पता लग जाए आज भी गुस्से, ठीक है? सॉफ्ट हो जाए, ऐसे सब बोले मैं सॉफ्ट हो जाए। घरों का माहौल खराब मत करें, आप अपने घर को जन्नत बनाओ, क्यों दोज़ख बना दिया, ठीक है? अपने घरों के माहौल को सॉफ्ट बनाओ। उसी टाइम बोलो शैतान को निकल जा, अपना मुंह शैतान को देने के बजाय खुदावन को दे दो, होली स्पिरिट को दे दो। एवरी टाइम आपकी ब्लेसिंग आपसे कोई नहीं छीन सकता। आगे बढ़ता हूं, लिखा है आयत नंबर 23। उसने कहा आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना,
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯਸੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बाइबल स्टूडेंट नहीं, चर्च नहीं जाती, कितने भी वो हैकल पता नहीं जाती है, लिखा है कि वो सब्बत के दिन हैकल में नहीं जा रही, सब्बत के दिन मरते खुदा के पास जा रही है। ठीक है, ये मैं आपको उसकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। ठीक है, वो उसका कोई बाइबल टीचर नहीं था जो उसे टीच करता, उसके पास जीसस क्राइस्ट नहीं था, उसके पास वो फेथ नहीं था जो आपके पास है, उसके पास वो होली स्पिरिट नहीं था जो आपके पास है। ठीक है, आगे सुनिए, क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सब्बत। उसने जवाब दिया, अच्छा ही क्या साड़ी जबान दी हो रहे होना भी है क्या नहीं हो रहे तो आते करी आने हैं, कोई समझ नहीं आऊंगी होना ही होना। मैं ठीक पर जेड़े तुहाडे घर पता लैन हुंदे ने जे तुसीं बीमार हुंदे उन्हां नूं ना हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूं, फोन ते कह दिया करो ही ठीक ना आए है। मैं सही कहा, जो लोग आपके हॉस्पिटल च उन्होंने मजबूरी है, घर में आपका पता लेने के लिए आते हैं कि जी असीं पता करी फलाना बीमार है, उन्होंने ना आ गया। मैं सही दसदा जी, अब बहुता जेडे पता लैन आउंदे ने पता खराब करके जाते। आप कह दें मेरी अंतड़ियों में पेट में रसौली है, हाँ 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 हाँ, चलो भाई खुदा तेनू शिफा दवे, लेकिन ऑपरेशन तो जरूरी है ना। ठीक है ना भाई, अपनी घर दवे खुदा तेनू शिफा दे, पर ऑपरेशन तो जरूरी है ना। दस की केड़ी गल दो गलियां केड़ियां पुलिसियां इन्हां नूं अपने घरां च रखो। सानू गिरजे जान दो, रब को जान दो, रब कहेगा मैं करांगा, मैं खुदा खुदा कभी भी किसी को नहीं कहता ये काम, वो कहता मैं कर दूंगा। लिखा जो कुछ दुआ में मांगते हो ईमान रखो तुम्हें मिल गया और बाद में मिल जाएगा। जो कुछ मांगते हो किसी बात के लिए, लिखा ही नहीं कि नहीं होगा, लिखा होगा। बाइबल का खुदा कहता है होगा 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 और फिर होगा। आप उजड़ गए हैं, लोग कहते हैं उजड़ कैसा ही, उनको मैं तेरे बन के बहाऊंगा, मैं बन के छड़ना, मैं बन के छड़ना। ठीक है, आप ना नहीं ना ते है नहीं। जदों मामा कोलों पापा कोलों पैंट लैनी होती जाने ना करते हैं, वो की आंदे ने नहीं मुझे लिख दो बेटा, कमेटी मिलदी है ते लै देना, मैनूं नहीं पता। फिर अम्मा जाती है किसी के घर, उत्थों 1000 रुपया लैंदी, आंदी जाओ इनू तेरे हाथ। अगर तुसी बाइबल में लिखा खुदावंद कहते तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मांगने से होली स्पिरिट क्यों ना देगा। आप हारे हुए लोगों से मत मिला करें, बस ये अपने अंदर रखिए, हारे हुए लोगों से मत मिला करें। ठीक है, जेडे हार गए ने उन्हां को बाउंड्रियों बाहर निकल जाओ। बाउंड्रियों साडी जिंदगी दे ग्राउंड च असीं कल्ले ही खेडना, असीं कल्ले ही खेडना। आगे देखिए क्या हुआ, अच्छा ही होगा। उसने गधे पर जीन कसकर अपने खादम से कहा, हाँ आगे बढ़, सवारी चलाने में ढील ना डाल जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जहाजी से कहा, देख इधर वो शनूमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ा जा और उससे पूछ कि क्या तू खैरियत से है और तेरा शौहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। उसने जवाब दिया कि ये उसकी जुबान पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। बच्चा मर जाने के बाद भी नेगेटिव, हमारे लोग जी भरकर मातम कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैं दुआ कर रहा हूं खुदा उसे जिंदा कर। इंजी है, पहला मातम कर लेना रज के, फिर कहना मेरा ईमान खुदा उसे जिंदा करेगा। मैं कहती जिंदा नहीं करेगा, ये नहीं होना जो आप मातम कर तो लिया, अभी तक उसकी जुबान को देखें, किसी दस्तूर को नहीं, दस्तूर काटती हुई है औरत आपको नजर आएगी। दुनिया के दस्तूरों के साथ चलती हुई ये वुमेन आपको नजर नहीं आएगी। और मिरेकल मौजज़ा, मरियम ने दुनिया के दस्तूर के मुताबिक जीसस को कबूल नहीं किया। दुनिया का दस्तूर क्या है? दुनिया का दस्तूर कुछ और है, और जब खुदा का फरिश्ता आकर बुजुर्ग मरियम से कलाम करता है तो वो दुनिया के दस्तूर को फॉलो नहीं करती कि दुनिया का दस्तूर तो शादी वाला है, तू मुझे बिना शादी के कह रहा ऐसा होगा। उसने दुनिया के दस्तूर से हटकर उस कलाम को रिसीव किया और खुदावंद उसी की जिंदगी में पैदा हो गया। कलीसिया दस्तूरों को फॉलो करती है, और आप कभी तजर्बा करना, बल्कि अभी आपको याद आएंगे जितनी मर्तबा भी आपकी इंसल्ट हुई है दुनिया के दस्तूरों की वजह से हुई है। आप जितनी मर्तबा बेइज्जत हुए हैं दुनिया के दस्तूरों की वजह से हुए। जितनी मर्तबा भी आपकी इंसल्ट हुई है दुनिया की रस्मों रिवाज की वजह से आपकी इंसल्ट हुई है, वरना आपकी इंसल्ट कभी किसी ने नहीं की, दुनिया के दस्तूरों ने आपकी इंसल्ट की है। कभी भी एक्सपीरियंस कर लें, मैंने बड़े बड़े लोगों को, समझदार इज्जतदार लोगों को दस्तूरों की वजह से बेइज्जत होते देखा है।
बड़े बड़े लोग जाकर बातें करके आते हैं कि जी साड़ी जंज जी 12 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन मैं कर दूं क्यों खुशी मेरे पास नहीं आगे बढ़ते हैं। बंदे वहां पर मर्द बातें करके आते हैं और वो बेइज्जत होते हैं जी तुसी साडे नाल गल कीती तुसी आए नहीं टाइम ना जंज लैके, और उसकी बेइज्जती की वजह आप सब समझते हैं, सिर्फ आपके दस्तूर है, आपकी ये टिक्की है जिसे आप संवारते रहते हैं। उतने बेटे को मिलन रही है बेटे में करो जाई जंज दा क्यों ब्यूटी पार्लर सुधार दे गया है ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਨੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਟੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ अच्छा देखो बंदे यानी गाली नहीं की थी, मैंने क्रिश्चियनों को इंसल्ट और बेइज्जत होते देखा, और उसकी वजह ये है ये सवारन दे तो होते ये क्या है भाई, आपको समझ नहीं आ रही, आप दस्तूरों ने आपको बेइज्जत करवा दिया, दुनिया की रस्म और रिवाज आपको बेइज्जत करवा रही है, फिर आप इनका खता नहीं छोड़ रहे, फिर आप क्या ही कर रहे हैं। आगे बढ़े, लिखा है उसने कहा खैरियत है, और जब वो आयत नंबर 27 और जब वो उस पहाड़ पर मर्दे खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ लिए, उसके पांव, और जहाजी उसे हटाने के लिए उसके नजदीक आया, पर मर्दे खुदा ने कहा कि इसे छोड़ दे क्योंकि उसका जी परेशान है। खुदावंद ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे, ये नबी एलीशा खुदा ने ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ रोज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। अलीशा कहता खुदा ने मैंने ये दस ही नहीं पता बच्चा मर गया, वो आई है उसने उसके कदम पकड़े हैं तब अलीशा जान गया कि उसका बच्चा मर गया, खुदा ने उसे बताया ही नहीं है अलीशा को। कहता खुदावंद हजारों बातें हैं जो खुदावंद आपकी जिंदगी से रिलेटेड खादमों को बताई गई है, जब तक आप सीधे रास्ते पर नहीं आओगे, जब तक आप खुदा के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, खुदा बेशुमार बातें खुदा अपने खादमों को बताएगा नहीं, जाहिर नहीं करेगा, छुपाए रखेगा और आपको नहीं बताएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, कानून को फॉलो करो, बाइबल को फॉलो करो, खुदावंद आपकी जिंदगियां बदल देगा, खुद ही बदल देगा। आगे लिखा है वो कहने लगी क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था, क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे। तब उसने जहाजी से कहा कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले, अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना कर, अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब। मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर, ये प्रॉफिट अपने शागिर्द को भेज रहा है, उसको क्या कह रहा है, उसको कह रहा है रास्ते में किसी को सलाम मत करना और ना किसी को आंसर बैक करना। ये कौन सा कानून है? इस बात पर मैं थोड़ी बात इसलिए करना चाहता हूं, खुदा ने अपने नबी को अलीशा को खड़ा किया, अलीशा ने अपने शागिर्द को भेजा आसा लेकर चला जा, जाकर लड़के के मुंह पर लगा, लड़का जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसको वार्न किया कि रास्ते में सलाम नहीं करनी, रास्ते में ये एक हुक्म दे रहा था खुदावंद उसे, अलीशा उसे एक आइन दे रहा था कि ऐसा करना है, रास्ते में किसी को सलाम नहीं करना। आप जब खुदावंद की राह पर निकल जाओ तो रास्ते में किसी की भी मत मानो, किसी की मत सुनो, जो कोई मर्जी कहता रहे, आप खुदावंद के कानून को फॉलो करो। जब ये वहां पर पहुंचा है, आयत नंबर 30 में लिखा है उस लड़के की मां ने कहा खुदावंद की आग की कसम मैं तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे चला और जहाजी ने उनसे पहले आकर आसा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज हुई ना सुना, इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का ये जहाजी आसा लैके गया तो मुंडा ये वही जहाजी है जेड़ा दौलत दा कोड़ लैके गया सी, ठीक है, आदतां पईयां ते ना जांदियां जिन्ना मर्जी असर पे करो, ये जो आसा लै गया ते राह च लोकां नूं आंदा कि खाई भाई साहब दा आसा मेरे कोले मोई दा मैं ही करांदा, उन्हें आखा जी करना नहीं भावें तो जो मर्जी कर। समझ आ रही है? बाल का हम किसी की ब्लेसिंग पर फख्र कर बैठते हैं, आपको फख्र नहीं करना बल्कि उसके अंदर रहना कि आपके अंदर जो है वो खुदा जाहिर करेगा, जो जिंदा कर सकता है उसने आपको आशा दे दिया, लेकिन उसके आशा लगाने के बावजूद भी बच्चा जिंदा नहीं हुआ। और जहाजी की हरकतें आप बाइबल में पढ़े, बाद में ये जहाजी पहले खादम का शागिर्द बना, फिर कोड़ लेकर वापस गया, आगे ये जहाजी बादशाह के सियासत में चला गया था। आज भी ऐसा ही लोग करते हैं, पहले पास्टर बनते हैं, जब वो पास्टरशिप कामयाब की थी फिर सियासत में जुड़ जाती। इस जहाजी के बारे में गौर से पढ़ना कभी बाइबल में,
بعد میں یہ جہادی سیاست میں چلا گیا تھا, بادشاہ کے گھر میں ملازم بن گیا تھا, کیونکہ خدا نہ تو اس کو چلیا گیا نہیں. تو یہ معجزہ نہیں کر سکا. آگے کیا ہوا, لکھا ہے آیت نمبر 32, جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر, سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداون سے کی کیتی ہے. تسی یہ دیکھو جے عورت دا ایمان اور دنیا دے دستوراں نہیں تے نبی بھی اسے ایمان چ دے نال چل. دروازہ بند کر لیا, پریئر شروع کر دی, اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا, اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا. تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا. یہ معجزہ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں. الیشا اس بچے پر لیٹ گیا, لیٹ کر اس نے پریئر کرنا شروع کیا. الیشا پر جو اسپرٹ تھی, میں آپ کو بتانے والا ہوں, الیشا پر جو اسپرٹ تھی وہ ایلیا کی تھی. کس کی تھی؟ آپ کو پتا ہے ایلیا کو آتشی رتھ لینے آئے تھے, ٹھیک ہے, آتشی میں فائر جو رتھ ہوتے ہیں وہ, اور ایلیا جب پریئر کرتا تھا تو فائر پہاڑوں کے اندر وہ دعا کرتا, وہاں پر آگ ہوتی. الیشا جب دعا کرتا تو وہاں پر ان کی اسپرٹ کے اندر ایسی فائر تھی, ان کی روحیں آگ سے بھری ہوئی تھی. جب وہ بچے پر لیٹا تو اس کی روح جو تھی, اس کی روح سے جو فائر نکلی اس بچے کے اندر ڈلیور ہونا شروع ہو گئی. مردہ بچے کے اندر زندگی آ گئی. اگر آپ ہولی اسپرٹ کو اپنی لائف میں کام کرنے دو گے, آپ کے مردہ خوابوں کے اندر زندگی آنا شروع ہو جائے. لکھا اس بچے کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا. جب الیشا اس پر پسر گیا اس کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا. میں اس لیے کلیسیا کو سکھاتا ہوں کہ آپ ایوری سنڈے, ایوری ڈے, ایوری سنڈے فائر پریئر کرنا مت چھوڑو. اپنے گھر کے اندر, اپنی لائف پر, اپنے ڈاکومنٹس پر, اپنے کپڑوں پر, اپنی خوراک پر, اپنے بچوں پر, اپنے بزنس پوائنٹ پر, اپنے کسٹمر پر فائر پریئر مست کرو. جب وہ فائر جاری ہوگی تو لوگوں کو نرمانا شروع کر دیتی ہے, لوگ نرم ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے الیشا اس پر پسر گیا اور اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا. پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا, اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ 7 بار چھینکا. بچے نے آنکھیں یہ معجزہ کیسے ہوا؟ دنیا کے دستور سے ہٹ کر ہوا. دنیا کے دستور سے یسوع مسیح نے کانا گلیل میں ایک معجزہ کیا, اگر آپ کو یاد ہو. کون سا معجزہ تھا؟ میں تھا. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ دستور کے مطابق وہاں 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے. لکھا ہے دستور کے مطابق 6 مٹکے رکھے تھے, اور لکھا ہے کہ بزرگ مریم آ کر اسے کہتی ہے کہ یہاں ان کی میں ختم ہو گئی ہے. تو خداوند نے ان کو آنسر کیا کہ اے عورت میرا ابھی وقت نہیں آیا. پھر بھی خداوند لکھا ہے وہاں پر کہ بزرگ مریم نے کہا جو یہ تم سے کہے وہ کرو, جو یہ تم سے کہے وہ کرو. اور لکھا ہے خداوند نے کہا ان مٹکوں کے اندر پانی بھر دو. ان مٹکوں کے اندر دستور یہ کہتا ہی نہیں, کانسٹیٹیوشن یہ ہے نہیں میں اگر میں چاہیے تو خداوند میں لا کر دے, آپ کہتے ہیں پانی کو مٹکوں کے اندر بھر دو. تو یہ کون سا قانون ہے؟ دستور نہیں ہے, دنیا کا قانون نہیں ہے. دنیا کے دستور سے ہٹ کر خداوند نے کہا آپ بھرو, خالی مٹکوں کے اندر میں بھر دو. ٹھیک ہے, خالی مٹکوں کے اندر پانی کو بھر دو, پانی بھر دو, اگلا کام میرا ہے. جیسے ہی انہوں نے حکم مانا ہے, خداوند کا حکم مانا ہے. آگے آپ بائبل کو دھیان سے پڑھیں, خداوند نے وہاں کمانڈ کی نہیں ہے کہ اے مٹکے میں تینوں پیا کہنا جڑا پانی تیرے چ پیا ہوئے میں بن جا. ایسا کہا ہی نہیں. لوگوں نے اس کے ورڈ کو فالو کیا, اور بس انہوں نے ڈالا ہے. اس کے بعد اس نے کہا جا کر نکال کر دیکھ لو, اور جب اس نے نکالا ہے اس کے بعد وہ میں بن گیا تھا. خداوند نے وہاں پریئر نہیں کی, وہاں پر قانون یا دستور سے ہٹ کر معجزات ہوتے ہیں. جب آپ اپنی زندگی میں دنیا کے دستوروں کو رکھو گے تو دنیا آپ کی زندگی میں دنیا کے کام ہوں گے. خدا آپ کو ڈاکٹروں کے, حکیموں کے حوالے کر دے گا اور آپ اسی طرح سے ساری لائف گزاریں گے, کیونکہ آپ دنیا کو فالو کرتے ہو, دنیا کے قانون کو فالو کرتے ہیں, دنیا کے دستور فالو کرتے ہیں. اس لیے ارے بھائی صاحب کی زندگی سے کچھ بڑھنا ہے. یہ اس موبائل پر شیشہ, ایک پتھر مجھے باہر سے ملے گا چھوٹا سا, دیکھیں ذرا. اگر آپ لائف میں کچھ بڑھنا ہی ہے, زندگی سے کچھ بڑھنا ہی چاہتے ہیں تو سب نالوں کچھ وکھرے بنے. آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ بنے, کچھ الگ بنے. آپ دنیا کے جیسے بن کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دنیا آپ دیکھیں کتنے بچے سائنس پڑھتے ہیں, میتھ پڑھتے ہیں. آپ جا کر سائنس بنانے والوں کو, میتھ بنانے والوں کو دیکھیں, وہ ان پڑھ تھے اور سکولوں سے نکالے گئے. کتوں کٹے گئے ہیں؟ سکولوں تو کٹے گئے. وہ نہ جا کے ہاں جی ٹھیک ہے تھینک یو, ریتاں دے بیگ میتھ بنا دیتا. ان پڑھا میتھ بنایا تو پڑھے لکھے پاگل ہو گئے.
इंज है कि नहीं? अनपढ़ा ने मैथ बनाया तो पढ़े लिखे की हो गए, दुनिया से वो हट कर चले। अगर साहब दुनिया में कुछ बनना है तो दुनिया से हट कर चलो, दुनिया से। ये देखिए, अगर ये पत्थर मैं शीशे को मारूंगा तो टूट जाएगा कि नहीं? टूट जाऊंगा कि नहीं? ये पत्थर है, इस शीशे को मारे तो ये टूट जाएगा। मैं कहता हूं दुनिया में ऐसा शीशा बनो कि पत्थर तोड़ डालो। क्या तोड़ डालो? पत्थर तोड़ डालो, ऐसा शीशा बनो। आप ऐसा बनो, ऐसा मत बनो। पत्थर सबके हाथ में है। पत्थर गुनहगारों को आसानी से मार देना बड़ा आसान है, गुनहगारों को पत्थर मार देना बड़ा आसान है। प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर होली स्पिरिट की ऐसी पावर हो कि आप किसी का गुनाह माफ कर सकें। आप किसी का गुनाह माफ, दुनिया से हटकर साहब सब बनते हैं। आप दुनिया में चलना चाहते हो तो बन नहीं सकते, दुनिया के साथ चलोगे तो बन नहीं सकोगे। अगर आप दुनिया में वर्तोपाजी बंद नहीं करोगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, दुनिया से हटकर आप चले, आप वैसे कामयाब। मैं कहता हूं हर कामयाबी के बाद एक कामयाबी की तलाश करो। गौर से सीखो, हर कामयाबी के बाद एक कामयाबी की, हर मोजज़े के बाद एक मोजज़े की तलाश करो। हर कामयाबी के बाद एक कामयाबी की तलाश करो, हर मोजज़े के बाद एक मोजज़े की, हर पकीज़गी के बाद एक पकीज़गी की तलाश करो। हर पकीज़गी के बाद पकीज़गी की तलाश करो। हर बरकत के बाद एक बरकत की तलाश करो। हर बरकत के बाद एक बरकत की तलाश करो। हर पकीज़गी के बाद एक पकीज़गी की तलाश करो। हर कामयाबी के बाद एक कामयाबी की तलाश करो। मिल जाए अगर दरिया तुम्हें तो समंदर की तलाश करो। कि तुम समझ सके, अगर कहानी तैयार मत करो तो फिर समंदर वाली जाना है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਕਰੋੜ ਵਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2500 ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਤਰੂਣਗੇ, ਮਕਾ ਕੇ ਮੱਕ ਕੇ ਹਣ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਡਣ ਜਾਣਾ है। नेवर, ऐसे लोग लाइफ में कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी, हर पावर के बाद एक पावर की तलाश आपको है। लेकिन जिंदगी में, जिंदगी के अंदर दस्तूरों से हटकर काम करें। हमारी इबादत का दस्तूर क्या है? ये हम बस सिस्टम ले आए, जिस दिन ड्रम सेट आ जाए बस, ठीक है, प्रेयर कर रहा हूं, ड्रम सेट आ जाए, फिर हमें अच्छा सा एक साउंड खुदा प्रोवाइड कर रहे हैं, आस्ता आस्ता सब कुछ हो रहा है, उस दिन मीटिंग प्रोवाइडर भी हम खत्म कर देंगे। ये मैं आसमानी दस्तूर की आपको बात बता रहा हूं, आसमान पर इबादत कैसे होती है। बाइबल गौर से पढ़े, दानियल की किताब पढ़ो, मुकाशफा की किताब पढ़ो, लिखा है लाखों लाख उसके हुजूर खड़े हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और खुदावंद तख्त पर बैठे हैं। खुदावंद तख्त पर बैठे हैं। ਤੁਸੀਂ भी दसो जी आसमान ਤੇ इबादत ਹੁੰਦੀ है। खुदावंद ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ जरा मिकाइल को कल घड़ी दुआ कर रहे हैं। कैसे नेवर, हमारे जो चर्च है, हमारी जो कलीसिया है, ये इंसानी दस्तूरों के मुताबिक इबादत करती है, इसलिए इबादत में मौजज़ात नहीं होती। इंसानी कानून, इंसानी आयन के मुताबिक इबादत होती है। खुदा की इबादत का असूल कलीसिया सारी वर्शिप करे, टोटल वर्शिप करे, खुदावंद सामने आए, कलाम सुनाए, इनफ, खत्म। इतने 15 एल्डर बैठे हैं, क्यों? जिन्होंने तो 7 ना आगे भी नहीं आए। इंच 7 जड़े ने वो ना आके ने सामने बैठे। कितनों को समझ आ रहा है? आपका शोर हटकर साहिब इबादत करें बस। दुनिया के दस्तूर के मुताबिक आप इबादत करोगे, आप कभी ब्लेसिंग नहीं पाओगे। आसमानी इबादत का रूल मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल में हम बरसों से निक्के होंदे दी दुआ करने हैं, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। कभी ये भी आखिर जिवें तेरी इबादत आसमान ते हुंदी है, क्योंकि ये थले ही करने ना ही खुदावंद तेनू करन दे। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੀ, ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਤੂੰ ਥਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀ अपनी मर्जी ना करोगे। कितना समझ आ रहा है? और भाई दुनिया के दस्तूर के मुताबिक आज तक हमारी वर्शिप है, ठीक है। 40,000 रुपए गाने वाले लेगा, मैं आ रहा हूं, कृष्ण तैयार रखे वो ना, हालेलुया, पाकरू आपके साथ है। पाकरू ने लोगों को बरकत देनी देनी है, पर तैनू जरूर एक दिन अदालत से सदूगा। समझ आ रही है आपको? आप बाइबल पढ़े, आसमान पर सारी वर्शिप हो रही है, सारी कलीसिया वर्शिप कर रही है। यहाँ कलीसिया ने एक स्टाइल बना लिया, तो भाई क्वायर ने गीत गाना। आने वाले फ्यूचर में क्वायर सुने, जो क्वायर इस चर्च में बनाई जाएगी, ये सुनने पड़े गौर से, उनके फेसबुक और उनके यूट्यूब अकाउंट वो चेक किए जाएंगे, फिर जाकर यहाँ क्वायर बनेगी। मैं आपको, मुझे भाई बता रहे थे, एक चर्च में बहुत बड़ा उनका वो सिस्टम था, लाखों के हिसाब से। उसके परस्तार ने, वर्शिपर ने फेसबुक पर किसी लड़की को मैसेज कर दिया, हेलो का।
हाँ जी है गल हाजिर लाते गवाही पवा दे मैं कोलों नहीं किसी ने फेसबुक पर किसी को मैसेज कर दिया और उसके पादरी साहब ने उसको बुलाया, उन्होंने कहा इतला गल सुन तू फेसबुक पे कुड़ी को मैसेज कीता वा हेलो दा हाँ जी कीता, उन्होंने कहा इस तो बाद तू स्टेज पे खलो के वर्शिप नहीं करनी निकल जा। उसने उसको छुट्टी करवा दी चर्च से। सारी रात फेसबुक चला के ते सवेरे आंदे करूदा मसा जद होया होना मैं कहा तू नहीं तेरे ते नहीं होना, ऐसे नहीं क्वाइल बनती और ना ये बनेगी। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये बनेगी तो इस तरह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा कि आपकी फेसबुक और आपके अकाउंट चेक किए जाएंगे। वहां पर अगर आपकी कोई शरारत मिली आप चर्च में वर्शिप नहीं करोगे, आप कलीसिया में रहोगे। आप समझ रहे हैं, यहां खड़े होने के लिए बड़ी पकीजगी की जरूरत है। मैं वर्ष को पढ़ देता हूं, रात भी मैं शेयर कर रहा था, पढ़ ले जरा इफ्सियों 5वां बाब। रात चले भाई के सवाल से ये वर्ष आ जावे हमारे काम आ गए, मैं कह कि स्कूल ना बैठे नहीं गए हो जैसे बानी गल सुन रही है। ठीक है, मुझे एक बहन ने कहा भाई साहब आप 1 घंटे में मैसेज कर देते हैं, कम से कम 2-3 घंटे का मैसेज तो किया करे। मैं कहा तू कल यही देखी फिर ना को देखेगा। इसमें 5वां बाब निकाले, सब 5वें बाब की पहली आयत को पढ़े, बड़ी खूबसूरत वर्ष रात को भी मैं बात कर रहा था। इबादत के दस्तूर को लोगों ने पमाल कर दिया, इबादत का दस्तूर ही गलत कर दिया गया। ठीक है, इबादत का दस्तूर में यहां पर आपको यहां पर पकीजगी का मियार बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। क्या लिखा है? अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानद बनो? अजीज फर्जंदों की तरह किसी भी एक्टर की मानद बन जाओ। मैं गलत नहीं पढ़ देती आज। बस अजीज फर्जंदों किसी भी अच्छी सी खूबसूरत सी एक्टर बन जाओ। नहीं ये लिखे है कि मैं गलत पढ़ लिखा गॉड बनो। क्या बनो? खुदा बनो। यहां तो ये लिखा है, चले खुदा नहीं आप बने, मसीह बन जाए। मसीह नहीं बन सकते। पलूस कहता मेरी मानद बनो, पलूस बन जाओ। पलूस ने ये बात इसीलिए लोगों से की थी, लोगों ने मसीह को देखा ही नहीं था और वो कहता मसीह ते तुसा वेख्या नहीं पर पलूस तुसी वेख्या है, मेरे वर्गे बन जाओ। मैं मसीह की मानद बनता हूं, तुम मेरी मानद बनो। ना तुसी रब बन सकते हो ना यसू, ते पलूस बन जाओ। पलूस नहीं बन सकते ते ਤੁਹਾਡੀ कलीसिया के सामने जेड़ा खलोता पादरी ਉਹਦੇ वर्गे बन जाओ। कितनों को समझ आया? गॉड बनो, खुदा बनो। मैं कहता हूं कुछ ना बनो ते बंदे ही बन जाओ। लिखा है बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो जैसा मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। आगे सुने, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी, नोट कर लें, लिख लें, हरामकारी, किसी तरह की नपाकी, किसी तरह की नपाकी और लालच का जिक्र तक भी ना हो। जिक्र भी नहीं होना चाहिए आपकी कलीसिया में। जब आपसे मैं 50,000 की डिमांड कर रहा हूं तो मैं लालची हूं और मैं की हूं। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, जिन्होंने नहीं उन्होंने पढ़ाओ, उन्होंने ये पढ़े, ये दस्तूर पढ़े। पकीजगी का लिखा है किसी तरह की नपाकी। क्या लफ्ज लिखा है? किसी तरह की नपाकी या लालच का जिक्र। क्या लफ्ज लिखा है? करना तो बात की बात है, जिक्र भी नहीं होना चाहिए, जिक्र तक भी नहीं होना चाहिए यहां खड़े होने के लिए। अगर यहां खड़े होने वाले शख्स के बारे में कोई भी नेगेटिव इशू सामने आता है और उस पर कमेटी बैठे और पता करे कि पादरी साहब तुसी यह काम कीता वा कि नहीं, दिल कलीसिया दा दुख गया ते पादरी साहब कल ही खुदा को माफी मंगण, खुदा मुझे माफ कर दे, ते थल्ले जिन्ना ठेडे खाते ने इन्हां को भी मंगो। नहीं समझ आई? बंदियां नु दुख दियो ते बंदियां कोलों माफी मंगी, ते रब नु दुख दियो ते रब कोलों मंगी। ये तो वो समझ आई। चले मैं एक और बात सिखाता हूं, साथ वाले इसका एक खास बात सीखे। घर च जेड़ा बड़ा भरा हुंदा है, घर च जेड़ा बड़ा भाई होता है, जब उसकी शादी होती है तो जो घर में भाभी आती है, सब लोगों, आप कलीसिया की मैं रूटीन बता रहा हूं। कलीसिया क्या करती है? भाई से प्यार ज्यादा करेंगे, भाभी से कम करेंगे। इंज ही होता है। हुण भाभी सारियां गल्लां नोट करती रहेगी आखणगे तेरे नहीं करदे, तू तो भरा होया, तू तो लांदा होया ना तां तेरे नाल करदे। इंज हुंदा है नहीं? बड़े भाई की घर में जब शादी होती है, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सुने बड़े ध्यान से, जब वो मसले बढ़ते हैं। अच्छा, मापियां नूं पुत्त नाल बड़ा प्यार है पर ओदी बीवी नाल नहीं होंदा। पुत्तर नाल प्यार करी जाणगे, बीवी नाल नहीं करनगे ओदी नाल। एक दिन ओदी बीवी ओनूं कहंदी तेरी इत्थे है, मेरी ते इत्थे आई कोई, इत्थों चुक ते निकली इत्थों।
अगर तुसी चाहते जे वड्डा भरा साडे नाल रहे ते भाभी नूं अपने नाल रखो, भाभी नूं अपने की गल मैं कीती। जे तुसी चाहुंदे हो कि घर च वड्डा भरा साडे नाल रहे ते भाभी नूं प्यार करो, भाभी नूं नाल रखो। कलीसिया यीशु मसीह दी दुल्हन है। तुसी चाहुंदे जे कि वड्डा भरा जिहड़ा इशा ते बैठा साडे नाल रहे ते कलीसिया नूं अपने नाल रखो। किन्नी समझ आई? नहीं समझ आई? कलीसिया पादरी दी भरजाई हुंदी है। अगर तुसी इस मायने में मेरे समझो, कलीसिया पादरी साहब की असल में भाभी होती है बड़ी। अब खुदा के खादम क्या कर रहे हैं? भाभी को दलील कर रहे हैं, तो बड़ा भरा जिहड़ा वो की करेगा इन्हों थले दुखां दे वेले तेरी आओ। देखिए ना, आप भाभी को दलील करोगे। ये मसीह की कलीसिया है, वो इसका दुल्हा है, उसने इसके लिए जान दी है कलीसिया के लिए। आप कलीसिया में रहो, कलीसिया के लिए बरकत चाहो, दुल्हा बड़ा भरा तुहाडे नाल रहेगा। बड़ा भरा तुहाडे, बड़ा भाई आपके साथ है, बाप आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है। खादम क्या करता है? कलीसिया को सामने खड़ा होकर कलीसिया की करता है इंसल्ट, और फिर मिठी फिर कलाम जगाता, देते ही है नहीं, देते ही है नहीं, खादमा दा चूल्हा किथों बलना। छोट ओ सच्चे कलीसिया नूं भाभी नूं परेशान करदा वा, तां यीशु नूं परेशान करेगा। परेशान पलूस रसूल ने दी कलीसिया नूं परेशान कीता, तां यीशु थल्ले आ गया। मैं कहा पलूस तू मैनूं क्यों टेंशन देना है? आप इस बात को सीखें, दस्तूर से हटकर चलें। दस्तूर आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे, कभी भी आपको ब्लेस नहीं होने देंगे। फास्टिंग में ठहरे, लिखा है किसी तरह की, मैंने कलीसिया से कहा 3 दिन फास्ट करके चर्च में आए। क्या करके आए? 3 दिन शादीशुदा लोग रोजा रखकर फिर चर्च में, ठीक है, अपने बिस्तर को पाक रखें। 3 दिन के बाद आपने चर्च में आना। किसी तरह की ये मैसेज ऑनलाइन है, कभी भी किसी को भी आप सुनाए कि ये पादरी की कहता है, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? खुदा गुनहगारों के लिए नीचे उतर आया, गुनहगारों के साथ उसने बैठकर खाया पिया, गुनहगारों को माफ किया, लेकिन अपनी पकीज़गी का म्यार खुदा ने कभी खराब नहीं किया। पकीज़गी आज भी उसकी यहीं पर है। आपको पकीज़गी के साथ उसके सामने आना। आप गुनहगार हो, गुनाह के साथ आओ तो खुदावंद आपको माफ करेंगे, आप ब्लेस हो जाओगे, आप अनाइंट हो जाओगे। उसके बाद वो आपको कहेगा पकीज़गी के साथ मेरे सामने आओ। उसके बाद ये दुनिया के दस्तूरों से हट कर चले। बस मैसेज का पर्पस यह है कि दुनिया के दस्तूर के मुताबिक मत चले, जिंदगी में वो काम करें जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। पढ़ने वाले बच्चे कितने हाथ उठाएं जो पढ़ रहे हैं? 1 2 3। वो सब्जेक्ट रखो जिहड़ा तुहानू नहीं आता। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, पढ़ना कैसे, ठीक है। इसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, हमारे बच्चे वैसे ही साढ़े थके होंगे, मैंने मैथ नहीं रखना, मैंने अंग्रेजी नहीं रखनी, तो मैं तू की रखेगा? बिजली का बिल रखेगा, कर्जा रखेगा? ओ भाई औखियां चीज़ां रखो, फिर जिंदगी च सौखियां चीज़ां नहीं समझे। तो पढ़ने का तरीका क्या है? आपको मैथ नहीं आता, 3 दिन फास्ट करो। कितने दिन? 3 दिन फास्ट करना है। खुदावन मैं मैथ के लिए तेरे रोजे के अंदर कितने मैथ के टीचर मर गए हैं, वो खुदा किसी भी रूह तुहानू दे छड़ेगा। ये हिकमत की बात है यार कितने मैथ के टीचर मरे हुए। आपको खुदावन मुझे मैथ की स्पिरिट चाहिए, खुदावन मैथ की रूह भेज देगा। ये बाइबल का फर्ज पलूस कहता है, उसने मुकाशफे की रूह बख्शी है, ठीक है। आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, खुदावन मुझे इंग्लिश ज़बान समझ आए, मुझे इंग्लिश समझ आई यीशु मसीह के नाम से, मैं इंग्लिश पर तेरी फायर मांगता, इसके वर्ड मेरी रूह के अंदर उतर जाए। इन्ने गोरे मरे ने किसी की रूह दे देगा। कॉमन सेंस, फास्ट करो। अच्छा जिन्हें बिजली बनाई वो सिंग लगे सी, जिसने मैथ बनाया घा खाता सी, जिन्हें मैथ बनाया घा खाता। भाई आप स्पिरिट मांगो खुदा से, जो काम आपसे नहीं हो रहा ना, स्पिरिट मांगो। खुदावन को मुझे तेरी स्पिरिट चाहिए, मुझे खुदावन मैथ की स्पिरिट दे, मुझे मैथ की, मुझे रियाजी की स्पिरिट दे, मुझे इकोनॉमिक्स की स्पिरिट दे, मुझे वो क्या कहते हैं फिजिक्स की स्पिरिट दे, मैं सीख जाऊं। खुदा तुहानू आप ही सिखा जाऊगा। टीचर तुहानू कहने पूरी खलो के पढ़ा दिया करो। ऐसा हो सकता है या नहीं? हाँ हाँ बोलो, हाँ कि ना? हो सकता है तो करें प्रैक्टिकल। आप खुद टेस्टमनी सुनाओगे कि मैनू मैथ नहीं आता, हूं मैं मैथ सिखाने। खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा वैसे ही दुनिया में वो काम करता है जो होता ही नहीं।
खुदा दुनिया में वही काम करने का आती। मैंने तो ये फलसफा सीख लिया, इसलिए मैं कोई भी काम करने से डरता ही, मैंने पता नहीं वही काम करना जो साडे को होना है। जेड़ा ताडे को होना है रब ने करना नहीं, जेड़ा ताडे को नहीं होना उन्हें उही ही करना। ये उसकी इज्जत है, ये उसकी। वो कहता मैं अतगीर पता कर यसू बड़े बड़े काम करेदा, मैं तो आडा नहीं कोई भी नहीं करना। समझ आ रही कि नहीं? कि देखें आप दस्तूर बदल दें, दस्तूर यहाँ देखें चर्च बन रहा है, हमने कोई एल्डर नहीं बनाया, कोई डीकन नहीं, सारी कलीसिया एल्डर है, सारी कलीसिया डीकन है। मैं खुद भी डीकन हूं, मैं खुद भी एल्डर, ठीक है। आसमान पर मैं नहीं कितने भी पढ़िया, बाइबल में लोग सुनाएंगे आपको, है असूल होना भी चाहिए किते ना किते, ठीक है, बाइबल में ऐसा बना हुआ है। लेकिन आज झगड़े के बाद आप आसमानी दस्तूर अपना ले, आसमान पर कोई एल्डर नहीं रखा हुआ, किते भी खुदा ने मिकाइल नहीं आख्या तेनू ना जिब्राइल डीकन बना लेना, उन्होंने निजाम नहीं खराब होगा। मैं बड़ा ही हैरान हां, उतला निजाम खराब होता ही नहीं। ऐसे दूसरे दिन चर्च बन गया खराब होता, चर्च बन गया खराब हो गया, लाखां करोड़ां रुपया लोग गोल्ड वेच देंगे, लोग अपना घर देंगे आ कि लो जी इत्थे कर लो, चर्च बनते बाद लड़ाई हो गई, लोग गिरजे नहीं होंगे, क्योंकि आसमानी दस्तूर आप यूज नहीं करते। आप अपने घर में आसमानी कॉन्स्टिट्यूशन कायम करें, दस्तूर करें, खुदा खुद ही मौजूद करेगा। आपके घर बैठे मौजूदात होंगे, घर बैठे सारे काम होंगे। एक बहन ने जिसकी मैं बात कर रहा था टेंट के लिए पैसे, उसने 10,000 मुझे पहले सेंड किए। वो कहती है मुझे नहीं पता पादरी साहब, मेरे पास 9,000 थे, मैं प्रेयर कर रही थी, मैंने पादरी साहब को कहा कि मैंने आपको 40,000 यानी 40,000 मैंने सेंड कर रहे, तो मेरे पास सिर्फ 9,000 है। तो कहती मैं कोशिश कर रही थी मैं पहले 10,000 पूरा करके सेंड करूं। कहती वो मैंने पूरा किया और मेरे घर से, मेरी बाइबल से, बुक से 21,000 रुपया निकला, मुझे नहीं पता कहां से निकला। जब आप दस्तूर से हटकर काम करोगे फिर मौजूदात होती है। आपकी पॉकेट में 10,000 रुपया और 1,000 रुपया अपने खुदावंद को देना है, ये दस्तूर है खुदा के कलाम का कि तू 10वां हिस्सा दे, ठीक है। आप जब दस्तूर से हट जाते हो और आप 50%, 80% खुदा की हज़ूरी में सर्व करना शुरू कर देते हो, फिर खुदा मिरेकल करता है, फिर खुदा मौजूदात करता है। आप 10% पर भी नहीं अड़े हुए तो इसके बाद आप बाइबल के दस्तूर को भी फॉलो नहीं करते तो मौजूदात आप नहीं ले सकते। मैं बताना या मैसेज का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो यही है कि दस्तूर से हट जाए। दुनिया का दस्तूर लोगों को परेशान करेगा, दुनिया के दस्तूर ने चर्च खराब किया, दुनिया के दस्तूर ने कलीसिया खराब की, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने शादियां खराब कर दी, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिश्ते खराब कर दिए। दुनिया खुदा के कलाम को, आइन को फॉलो नहीं करती, इसलिए लोगों की लाइफ और उनकी ब्लेसिंग जो है वो कमजोर से कमजोर, कमजोर से कमजोर, नीचे से नीचे, लानत का, टेंशन का, गरीबी का, परेशानियों का, बीमारियों का शिकार दिन ब दिन कलीसिया की जा रही है। कोई दिन खाली नहीं होना चाहिए। किसी दिन हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एम्प्टी डे। क्या? खाली दिन। क्या टॉपिक होगा? इस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा, दिन कैसे खाली होता है, ठीक है। तो ये भी बाइबल के सारे फलसफे हैं, ये बाइबल की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन जो बात मैंने आपको सिखाई कि खुदा ने उनसे कहा दुनिया के दस्तूर पर मत चलना, ये मुल्क तुम्हें उगल देगा, ये मुल्क तुम्हें उगल देगा। और आज यहाँ जो कलीसिया है वो इसी प्रोसेस से गुजर रही है, इन्हीं हालात से गुजर रही है। हमने खुदा के आइन के बजाय हमने दुनिया के दस्तूरों को फॉलो करना शुरू कर दिया और खुदा हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारी जो ताकत है, उसको उगल रहा है और वो हमने बाहर फेंक रही है चीजें। आप जब खुदा को कबूल करते हैं तो खुदा के साथ चलें, मत देखें। सबसे ज्यादा आप जब खुदावन के साथ चलेंगे तो आपको परेशान पता कौन करेंगे? कोई बताएगा? तो नहीं पता। लोगों ने कहा कि रिश्तेदार, तो इनको कैसे पता? कैसे पता भाई? मैंने तो नहीं बताया, मैंने तो नाम भी नहीं दिया, इसको मतलब आपको पता है कैसा है। जब हम आसमान पर जाएंगे, आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, क्या हम कहेंगे? खुदावन को फोन से बुला दो मेहरबानी, खुदावन देखो ना अंकल जेडे ने थले नाराज होए हम तो उन्होंने बुला दो, मैं माफी मांग लूं। ऐसा टाइम नहीं है। रिश्ते वो होते हैं जो आपको मजबूत करते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो आपको, वो रिश्ते नहीं होते जो आपको कमजोर करते हैं, जो आपको खा जाएं। दौलत के उत्ते तुसी घुट के बह रहे हो ते थल्लों वाह भी ना निकले, की लभना? रिश्ते वो होते हैं जो आपको मजबूत करते हैं। स्पिरिचुअल इंसान वो है जो आपको मजबूत करता है, ठीक है। मैं रिश्ते उन्हीं को समझता हूँ जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। एक दूसरे की शादियों में जाना, उससे पूछना कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, साडी मदद की लोड़ है, असीं इत्थे बैठे हां, कोई मसला है तो सानू दसी, असीं इत्थे ही हां। आ वे रिश्तेदार। ते जेड़ा
मैं खा गया खाए ये तो रिश्तेदार होती है। रिश्तेदार वही है जो आपको स्ट्रॉन्ग करे। जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं आपका भाई हूँ, वो आपका रिश्तेदार है। आपकी कमजोरियों में आपको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू चल। आमीन आमीन। कलीसिया का शोर बताए, कलीसिया आमीन।